Dear students, Assalamu alaikum. I am Javed Ahmad Bhatt. As you know, we are reading the poem A Roadside Stand by Robert Frost. So, in this poem, Robert Frost brings before the pitiable and the miserable condition of the farmers, the poor farmers, and the other communities of the society, and the exploitation thereof by the ruling class and the rich people. And in this poem, he shows how these sections of the society, how their wishes, how their aspirations are being raised by these people only for to meet their ends only, and nothing is being done on the ground level for the upliftment of these sections of the society. So, in this poem, the poet expresses his anger at the indifference of the rich and ruling classes to the fate of poor farmers and other deprived communities. The sight of a roadside stand brings to his mind the pitiable state of these people. तो जब वो एक रोड साइड स्टैंड देखता है जहाँ पर वो कुछ चीज़ें बेचने के लिए एक गरीब किसान ने अपने घर के सामने वो खोला होता है, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ से गुज़रने वाले लोग वहाँ पर रुकेंगे और उससे वो चीज़ें खरीदेंगे और थोड़ी बहुत आमदनी उसको मिलेगी, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे ताकि उसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशहाली आ जाए. So, yesterday we read up to this keeping from us, and now today we will start from here. It is in the news that all these pitiful kin ought to be brought up to the last line of the lesson and offer to put me gently out of my pan. So, first of all, we will try to understand some phrases and words which we encounter in this section of this poem. तो हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे. तो pitiful kin means the families of poor farmers who are in a pitiful condition यानी किसानों के वो ख़ानदान जो बहुत ही नागुफ्ता हालत में हैं, जो बहुत ही गुर्बत की हालत में हैं. greed good doers, greedy people who pretend to do good for the poor, यानी वो लालची लोग जो बज़ाहिर तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो गरीब लोगों के हमदर्द और हमनवा हैं, लेकिन असल में वो होते नहीं हैं. beneficent beasts of prey, cruel hearted people who exploit the poor but pretend to be generous and kind to them, यानी वो लोग जो इनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इनका इस्तेसाल करते हैं और बहाना बनाते हैं, यानी कि वो प्रिटेंड करते हैं, ज़ाहिरी तौर वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही सखी और मेहरबान हैं. swarm over their lives, overshadow their existence, यानी इन गरीब लोगों की इन पर उनकी छाया हमेशा रहती है. soothe them out of their wits, fool them without letting them come to know of it, यानी उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं बगैर उन्हें ये समझे हुए कि हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है. lurks, keeping waiting silently, lurks means keeping waiting silently, यानी खामोशी से किसी के दिल में कोई चीज़ जो रहती है. अच्छा, स्केल, लॉन्ग हाई पिचड साउंड, एक ऊंची आवाज़. प्लो अप मीन्स प्लो अप, टीयर अप, यानी कि जब हम ज़मीन जोतते हैं तो उसकी चीर फाड़ होती है, इसी तरह. गैस हियर मीन्स गैसोलीन और पेट्रोल. सैन एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो हम हैविंग ए नॉर्मल माइंड, नॉट मैड, रीजनेबल और सेंसेबल, यानी एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल सोच की तरह. रिक्विसाइट मीन्स रिक्वायर्ड और नेसेसरी, जो दरकार हो. ओनिंग, एडमिटिंग, यानी कि कोई चीज़ एडमिट करना. एट वन स्ट्रोक विद ए सिंगल इमीडिएट एक्शन, यानी
एकदम से कोई अमल करना. So we will take up here these liners. It is in the news that all these pitiful kin up this ancient way. यहाँ तक. तो in these lines the poet becomes very bitter and satirical. तो यहाँ पर शायर जो है वो बहुत ही तनकीद करता है उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार में हैं. एंड he says that government is selling false promises. They say that they will pay for the farmers for their holdings and they will be settled near cities where there are theaters and departmental stores. And this hint, the poet here indicates that he criticizes the government that whatever they will be paid will be taken away through these medias, the theaters and other things. यानी कि इनके ज़रिए इनका जो पैसा इन पर खर्च किया जाएगा वो इनसे वापस लिया जाएगा. तो इन्हीं वादों से इन गरीब किसानों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा. तो ऑल केयर यानी कि उनकी जो देख रेख है वो तमाम गवर्नमेंट देखेगी उनके लिए. लेकिन शायर इन लोगों को ग्रीडी गुड डावर्स यानी कि वो लोग जो हकीकत में उनका इस्तेसाल करने वाले हैं और ज़ाहिरी तौर वो दिखाते हैं कि वो इनके लिए कोई अच्छी यानी कि उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं. तो शायर कहता है कि दर हकीकत वो इन्हें ये सोचते हैं, ख्वाब दिखाते हैं कि आप सुकून की नींद सो जाओगे, लेकिन हकीकत में वो इनकी नींद छीनने वाले होते हैं. देन वी हैव these liners. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plough up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. तो यहाँ पर जिसने ये रोड साइड स्टैंड लगाया है फार्मर ने, वो तमाम दिन इस इंतज़ार में होता है कि कोई यहाँ पर कोई गाड़ी आके रुकेगी, वो शायद कोई ज़रूरत की चीज़ उनसे ख़रीदेगी और उनके पास पैसे आएंगे. लेकिन ये बेचारे तमाम दिन इसी बचकाना ख्वाहिश में गुजारते हैं अपनी खिड़की पर, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकती. अगर कोई गाड़ी रुकती भी है तो वो वापस मुड़ने के लिए, और वहाँ पर जो घास होती है उसके सामने, तो उसे उखाड़ती है अपने टायर से. और कोई वहाँ पर जब कोई और गाड़ी रुकती है तो वो उसे पूछता है कि आपके पास पेट्रोल है या कुछ. तो ये स्टैंड वाला, ये दुकानदार, ये छोटा सा, ये कहता है कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है. तो वो गुस्से में आता है, तुम्हारे पास पेट्रोल क्यों नहीं है. और इसी अमल में यानी कि वो वहाँ पर वो ज़मीन उखाड़ता है. और तो ये शायर जो है, द पॉइट रिमार्क्स दैट द कार कुड हैव इजीली सीन दैट देयर कुड बी नो पेट्रोल एट सच ए रोड साइड स्टैंड. और गुस्सा करने वाली तो कोई बात ही नहीं इसमें, हालांकि गाड़ी को दूर से दिखाई देता कि इस स्टैंड पर पेट्रोल नाम की कोई चीज़ बेचने वाली नहीं है. तो उनका गुस्सा होना ये बेईमानी है, ये उनकी बेवकूफ़ी है. तो पहले वाले स्टैंजा में वो ख्वाबों की बात करता है कि किस तरह लोग ख्वाब बेचते हैं इन गरीब लोगों के लिए और फिर उनका इस्तेसाल करते हैं. और दूसरे में किस तरह ये गरीब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद ये अमीर लोग यहाँ पर रुकेंगे और हमारे लिए आमदनी का थोड़ा बहुत ज़रिया बनेंगे, लेकिन वो उल्टा वो इन्हीं पर गुस्सा करते हैं. तो देन वी हैव लॉस्ट स्टैंजा. No, in country money, the country's scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pan.
And then next day I come back into the sand. I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pan. और इस लास्ट स्टैंजा में शायर इन तमाम बातों को इन्हें एक्सप्रेस करने के बाद तो the poet says that in the country's economic policies and in the country's statistics, the well-being of the farmers has never been considered. यानी मुल्क की माशियात में या एदाद शुमार में इन गरीब किसानों की बहबूदी के लिए हकीकत में कोई काम नहीं किया गया. It is a general complaint of all those who live in the rural countryside. The poet says that he would feel a great sense of relief if the pen of these poor farmers is put an end at one stroke. तो ये तमाम शायर कहता है कि ये तमाम जो शिकायत है ये गाँव में रहने वाले किसानों की हैं, आम किसानों के हैं, और वो चाहता है कि मैं जो बहुत खुशी होती अगर बियक जुम्बिश कलम यानी कि एक ही वक्त इन तमाम मसाइब व आलाम का अजाला किया जाए, इन्हें ख़त्म किया जाए. He wants them to be in such a position that they can offer to help the poet if ever they found him in pain. अब वो इन्हीं फार्मर्स से कहता है कि नहीं, you have to do yourselves, you have to help yourselves, और ऐसा हो, ऐसे बनो कि आप अगर मैं कभी तकलीफ़ में हूँ तो आप मेरी मदद को आएँ. In other words, the poet wants that poor farmers, instead of seeking help, should be in a position to help others and relieve them of their pain. तो अल्फाज से दीगर शायर ये कहता है कि ये जो गरीब किसान हैं ये दूसरों की मदद के मोहताज होने के बजाय खुद दूसरों की मदद करने के काबिल हो जाएं, वो इस काबिल हो जाएं कि वो दूसरों की मदद कर सकें. तो इस सारी पोइम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ ब्रॉट बिफोर द पिटिएबल कंडीशन, द मिजरेबल कंडीशन of the poor and downtrodden sections of the society, and the promises the politicians and the rulers and the people at the helm of the affairs they sell to them, they are false and only to exploit them. तो आखिर में वो यही कहता है कि ये जो उम्मीद लगाए बैठे हो आप इक़्तिदार के ऐवानों के साथ, ये जो अमीर लोगों के साथ उम्मीदें लगाए बैठे हो, इसके बजाय तुम खुद इस काबिल बनने की कोशिश करो कि तुम दूसरों की मदद कर सको. थैंक यू.